Hello student, today we are going to solve problem number 10 from the not for profit concern chapter, and this is the unsolved problem of the chapter. Then see the problem: from the following receipt and payment account KBP Engineering College Nashik for the year ending on 31st March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the year ending 31st March 2019. So this is the receipt and payment account, and here we have additional information related to it and three adjustment related to the receipt and payment. So receipt side में देखो to balance brought down. So to balance brought down cash in hand, cash at bank. So no need to write because we know कि this is opening balance, and opening balance हम नहीं लिखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में. देन इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट है सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फी, sundry receipt, admission fees, and they mention in the bracket revenue. See the payment side: by salaries to teaching staff, electricity charges, books, furniture, stationery, fixed deposit. Here they given us the date and by balance carried down. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बुक्स है. देखो यहाँ पर भी बुक्स है रिसिट पेमेंट साइड में, एंड बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है. फर्नीचर हैज सेम एडजस्टमेंट लाइक बुक्स. It has opening balance and closing balance. Building fund they given us, this is the additional information than the receipt and payment. Then this is fixed deposit. So again we have one fixed deposit, here we have one, and here this is the opening balance. Then capital fund they are giving, and the three adjustment. See the first one, 50% of donation are for building fund. So this adjustment is on donation. So donation has one adjustment, that 50% of donation for building fund, and the balance is to be treated revenue income, and the balance है वो revenue income है. Second, outstanding subscription rupees 5,300. So this adjustment is there on subscription, and then life membership fees are to be capitalized. Life membership fees are to capitalize. So life membership fees जो है ये capitalize हुई है receipt side की. तो इस तरीके से प्रॉब्लम है. एंड हियर वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. एट द सेम टाइम वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट. सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं. तो यहाँ पे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लिया है. एंड एज वी यू नो कि हम लोग ऑलवेज रिसिट साइड से स्टार्ट करते हैं एंड देन एडजस्टमेंट तक आते हैं. तो सेम हियर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसीट साइड से. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, so no need to write it. Again I repeat, this balance is not necessary to write. ओपनिंग बैलेंस है, नहीं लिखना है. देन इंटरेस्ट 55,000. सो ये टू इंटरेस्ट है, रिसीट साइड का कहा जाता है इनकम में, ये रिसीट है कहा जाएगा इनकम में बाय इंटरेस्ट. सो फर्स्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट. So by interest 55,000. After that टू सब्सक्रिप्शन 28,300. तो ये टू सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे जाके क्या होगा बाय सब्सक्रिप्शन. बाय सब्सक्रिप्शन 28,300. तो ये अमाउंट हमने इनर कॉलम में क्यों दिखाया है, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग का. ओके, और एडजस्टमेंट हम लोग बाद में करेंगे, जस्ट पोस्टिंग कर लेते हैं सबसे पहले. Then see the next, life membership fees 25,000. So here they given life membership fees are to be capitalized. तो life membership fees capitalize हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हम इनकम में इसकी एंट्री नहीं करेंगे. अगर आपको इसकी एंट्री करनी है तो आप इसकी एंट्री कर दो एंड फिर कैपिटलाइज करके आउटर में क्या कर दो, इसको नील दिखा दो. अदरवाइज अगर आपने इसकी एंट्री नहीं की इनकम साइड में एंड अगर कैपिटलाइज है, इसका मतलब हमें लायबिलिटी में दिखाना है. तो अगर लायबिलिटी में हमने कैपिटल फंड में इसको दिखाया तभी भी चल सकता है. सो अभी मैं तो यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये कैपिटलाइज हो रहा है. देन नेक्स्ट इज डोनेशन 7 लाख. सो डोनेशन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है. बाय डोनेशन 7 लाख, डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हमने इनर कॉलम में दिखा दिया इसको.
Then next, tuition fees 12,30,000 and to term fees 2,08,000, to sundry receipt 8,000 and to admission fees revenue 60,000। एडमिशन फीस रिवेन्यू है, इसके लिए पूरा का पूरा एडमिशन फीस हमें कहाँ दिखाना है, इनकम साइड में। तो ये सबकी एंट्री हमें करनी है और किसी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सबका अमाउंट कहाँ पे जाएगा, आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, सन्ड्री रिसीट, एडमिशन फीस। तो हमने सबका एंट्री कर लिया यहाँ पे, रिसीट साइड इज ओवर। देन सी द पेमेंट साइड, बाय सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 11,70,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। ये दोनों की एंट्री हमें करनी है एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये दोनों कहाँ जाएंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे, क्योंकि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सी एक्सपेंडिचर में हमने एंट्री कर ली है, टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ एंड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, दोनों की एंट्री हो गई। नाउ सी द नेक्स्ट, बाय बुक्स एंड बाय फर्नीचर, ये दोनों भी असेट है। ओके, तो ये दोनों भी असेट है, तो हमें ये असेट भी दिखाएंगे। एंड दोनों के ऊपर यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रहा है, तो दोनों का अमाउंट हमें कहाँ लिखाना है, इनर कॉलम में दिखाना है। बुक्स 6 लाख, फर्नीचर 3,19,000, तो दोनों का अमाउंट हमने इनर कॉलम में दिखाया। देन नेक्स्ट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी इज एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में दिखाना है। एंड फिक्स डिपॉजिट असेट है, टू स्टेशनरी 21,850। देन नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट भी असेट है, तो असेट में दिखेगा। एंड बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिकॉज दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस, तो हमें ये असेट में दिखाना है। तो ये तीनों भी हमें असेट में दिखाना है, बट फिक्स डिपॉजिट है के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो फिक्स डिपॉजिट हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनर कॉलम में दिखाना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 एंड कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हमने एंट्री कर ली 16,650 एंड 2 लाख। सो रिसिट एंड पेमेंट पूरे एंट्री हो गई। Then see the additional information related to it. First, books. Now here they given us opening balance of books at the same time closing balance of book. तो 1 अप्रैल 2018 का जो बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है, 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस है। बुक्स 6 लाख दिख रहा है, यहाँ पे ये जो पेमेंट साइड में 61,000 दिख रहे, दिस इज टोटल परचेस ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इस साल में टोटल बुक्स का परचेस कितना हुआ, वो है ये 61,000। तो हमें क्या करना है, ये हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया यहाँ पे, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। जो हमने यहाँ पे लिखा उसमें हम ऐड करेंगे परचेसेस। बुक्स 6 लाख एड परचेसेस 61,000। ये हम कैसे कर रहे हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड जो पेमेंट साइड में दिख रहा है 61,000, ये क्या है, दिस इज परचेसेस, टोटल परचेस ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द ईयर। तो वो हमने यहाँ पे ऐड किया। अमाउंट कितना आ रहा है, 6,61,000 इज द अमाउंट। पर यहाँ पे देखो क्लोजिंग में जो अमाउंट है 31 मार्च को, जो बुक्स का अमाउंट है वो क्या है, 6 लाख है। मतलब आउटर कॉलम में आपको 6 लाख आना चाहिए। आउटर कॉलम का जो अमाउंट है बुक्स का वो 6 लाख आना चाहिए, बट बुक्स का ओपनिंग बैलेंस एंड परचेस ऐड करके अमाउंट कितना आ रहा है, 6,61,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 6 लाख। इसका मतलब क्या है, 61,000 जो है वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको कि ये जो 6 लाख है दिस इज द ओपनिंग बैलेंस जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन से मिला है। 61,000 जो है वो परचेसेस है जो हमें यहाँ से पेमेंट साइड से मिले हैं। तो टोटल हो गया 6,61,000, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन शोज 6 लाख अमाउंट ऑफ बुक्स। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बुक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 6 लाख है। तो आउटर कॉलम में 6 लाख आना चाहिए, इसका मतलब 6,61,000 माइनस 6 लाख, तो 61,000 इज डेप्रिसिएशन। तो सेम हमें
यहाँ पे फर्नीचर का भी उसी तरीके से एडजस्टमेंट कंप्लीट करना है, बिकॉज फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट सेम उसी तरीके से है। तो देखो यहाँ पे फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,19,000। तो हमने लिख दिया 3,19,000, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। फर्नीचर टोटल परचेस कितना हुआ है, पेमेंट साइड में दिख रहा है, देखो पेमेंट साइड का जो 51,000 है, ये क्या है, दिस इज द टोटल परचेस ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेस हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड परचेसेस 51,000। नाउ सी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 3 लाख है। इसका मतलब आउटर कॉलम में हमें कितना अमाउंट दिखना चाहिए फर्नीचर का, 3 लाख। द आउटर कॉलम में ये अमाउंट 3 लाख दिखनी चाहिए। पर आप ओपनिंग बैलेंस एंड परचेस फर्नीचर का अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको अमाउंट क्या मिलती है, आपको अमाउंट क्या मिल रही है, 3,70,000। पर आउटर में अमाउंट दिखनी चाहिए 3 लाख। क्यों, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में 3 लाख है। तो जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, इन दोनों अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरली डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितना है इसका, 70,000। सो लेस डेप्रिसिएशन 70,000, 3 लाख। तो ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है इसका सेकंड इफेक्ट होगा, कहाँ पे होगा, एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर बुक्स 70,000, 61,000 एंड आउटर कॉलम में 1,31,000। नाउ सी बिल्डिंग फंड 10 लाख। सो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। बिल्डिंग फंड रिसिट एंड पेमेंट में कहीं नहीं है, तो हमें बिल्डिंग फंड कहाँ दिखाना है, लायबिलिटीज में। बिल्डिंग फंड 10 लाख, हमने एंट्री की बिल्डिंग फंड 10 लाख। तो मैंने अमाउंट इनर कॉलम में दिखाया है, क्यों, बिकॉज डोनेशन भी बिल्डिंग फंड में आने वाला है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर कैपिटल बिल्डिंग फंड, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वाई मैंने अमाउंट कहाँ पे लिख दिया है, ये इनर कॉलम में। देन नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट 9,10,000। तो यहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट है, ये नया फिक्स डिपॉजिट है, मीन्स ये दिस इज द न्यू इन्वेस्टमेंट। और ये है, ये ओपनिंग बैलेंस है फिक्स डिपॉजिट का, और ये क्या है, ये न्यू इन्वेस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट की। तो हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 9,10,000। एंड वॉट एवर देयर इन पेमेंट साइड फिक्स डिपॉजिट, तो दिस इज द न्यू फिक्स डिपॉजिट। या आप उसको क्या बोल सकते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, या न्यू फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हो। तो ये न्यू फिक्स डिपॉजिट है, जो इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो ऐड न्यू फिक्स डिपॉजिट 8,50,000। सो आउटर कॉलम 17,60,000, इस तरीके से एंट्री होगी फिक्स डिपॉजिट की। देन कैपिटल फंड 9,47,400, जो लायबिलिटी में दिखाना है। तो कैपिटल फंड 9,47,400। ओके, देन एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे खत्म। सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। तो ये जो डोनेशन है इसका 50% किसके लिए है, बिल्डिंग फंड के लिए है। तो हमें यहाँ से लेस करना पड़ेगा 50% डोनेशन। सो 7 lakh लेस 50% फॉर बिल्डिंग फंड, 3,50,000। आउटर कॉलम में 3,50,000 आएगा। तो यहाँ से लेस करके ये कहाँ पे ऐड होगा, बिल्डिंग फंड में ऐड होगा। तो बिल्डिंग फंड ऐड 50% ऑफ डोनेशन 3,50,000। तो आउटर कॉलम में बिल्डिंग फंड कितना आ रहा है, 13,50,000 आ रहा है। तो ये हो गया सेकंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹5,300। नाउ दिस इज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सो ये हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। So add outstanding subscription 5,300 and in outer column it is 33,600. So second effect of it goes to the asset side. ये second effect इसका कहा जाएगा, asset में जाएगा। So outstanding subscription 5,300. Then life membership fees are to be capitalized. Life membership fees जो है वो capitalize होना है। Capitalize होना है मतलब capital fund में हमें क्या करना है, add दिखाना है। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 है, तो हमने यहाँ पे ऐड किया, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 कैपिटल फंड में ऐड किया। नाउ
यहाँ पे सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड एडजस्टमेंट खत्म हो गए. Now we have to close income and expenditure account. So firstly we have to close the income side. So the total of income side is 19,37,400. इस तरीके से इसकी टोटल आती है. सेम वी हैव टू राइट इन द एक्सपेंडिचर साइड. तो जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे? सरप्लस कहेंगे. सो सरप्लस कितना आ रहा है? 5,59,550. ये सरप्लस आ रहा है जिसे हम कहते हैं एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. एंड ये सरप्लस जाके कैपिटल फंड में ऐड होगा. तो ऐड सरप्लस 5,59,550. तो ये टोटल 9,47,400, 5,59,550 और लाइफ मेंबरशिप इसका 25,000 ऐड करेंगे. तो टोटल आती है आउटर कॉलम में कैपिटल फंड की 15,31,950. एंड बैलेंस शीट जो है वो टैली होता है 28,81,950 से. तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो सॉल्व करना है. ओके, थैंक यू.